हेलो दोस्तों, स्वागत है आपका हमारे चैनल पे। आज हम स्टडी करने वाले हैं बिजनेस इन्वायरमेंट, जो कि ये हमारा क्लास 12 का जो सब्जेक्ट है बिजनेस स्टडी। ओके, बिजनेस स्टडी का चैप्टर 3 है। क्या है? वो हमारा क्या है? बिजनेस इन्वायरमेंट। ओके, तो आज हम इसके बारे में अच्छे से स्टडी करेंगे। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। तो फर्स्ट देखिए क्या है कि द टर्म business environment means the totally of the individuals, institution and other force are that outside the control of a business enterprises but have a major impact on its performance। and इसके फीचर्स हैं टोटली एक्सटर्नल फोर्स। ठीक है, ज़्यादा बाहरी के जो भी बल हैं, बिजनेस इन्वायरमेंट इज़ द सम टोटल of all individual group, institution and force that exist outside of a business organization and impact it. Specific and general force. Specific force are customers, competitors and suppliers, and they have a direct impact on the organization. General force are public, social, legal and technological and economic dimension which have a direct impact on the organization. Okay, and interrelatedness. Okay, different element of business environment, interrelated and interdependent. Increase in disposable income may increase the demand of luxury products. Okay, ये क्या है? हमारे एक्सटर्नल्स। ओके, एंड उसके बाद डायनेमिक, एक मिनट सॉरी, उसके बाद हमारे क्या है? डायनेमिक नेचर। डायनेमिक नेचर क्या है? कस्टमर टेस्ट द रेफरेंसेस, इंसिडेंटी competition in the market, etc. keep on changing, giving it a dynamic nature. Okay, uncertainly, it is impossible to predict future event with certain. In same industry like mobile manufacturing, IT, etc, it is even more difficult to do so. Okay, and उसी तरह complexity है, relax complexity, it is the really difficult for business firm to understand business environment unless it is broken into components like political, economic, social, technological and legal dimensions. Okay, and seventh है reliability. तो business environment differs from place to place, so it is the relative concept. Okay, ये एक स्थान से दूसरे स्थान के लिए क्या है? डिफर्स। ठीक है, एंड this difference can be on the basis of social, political or other dimensions of business. Okay, एंड हम आगे बढ़ेंगे। तो इसके इम्पोर्टेंस क्या है बिजनेस इन्वायरमेंट के? ठीक है, टू इनेबल द फर्म एंड आइडेंटिफाई न्यू opportunities when they arise and getting the first mover advantage. Opportunities are the external trends which give a advantage to a business firm. ठीक है, and it help the firm of identify forthcoming threats and early warning signals of threats. Okay, and threats क्या है कि the external trends which bring disadvantage of to a firm. Okay, it help to tapping using resources. A business firm convert input like capital, labor, power, etc into finished good of public utility. Surprises, markets are fragmented and customers loyalties are ever changing. Environment is turning more dynamic and world has turned into a global village. All these have given more option to the customers. Okay, and fifth है आपका it helps in science planning and policy formulation for future as proper plan and policies can only the made after proper interaction with the business environment. Okay, आगे हम बढ़ेंगे। तो इसके 3 टाइप्स के हैं, मतलब LPG क्या होता है? तो फर्स्ट है लिबरलाइजेशन, प्राइवेटाइजेशन एंड ग्लोबलाइजेशन। तो लिबरलाइजेशन इज ए इकोनॉमिक पॉलिसी रिमूव unnecessary restriction and government regulation on business step taken by the government and direction. ठीक है, तो abolishing licenses requirement in most industry expect for a short list of industry, freedom in direct deciding the scale of business activity, removal the restriction of
रिस्ट्रिक्शन ऑन द मूवमेंट ऑफ गुड एंड सर्विसेज, जो भी रिस्ट्रिक्शन इसको हटा दिया गया, और फ्रीडम ऑफ फिक्सिंग द प्राइसेस ऑफ गुड्स एंड सर्विसेज, और जो उसके जो प्राइस को फिक्स करना वो भी आज़ाद कर दिया गया। हर एक कंपनी जैसे चाहे वैसे अपना प्राइस सेट कर सकती है गुड एंड सर्विसेज का। ओके, एंड उसके बाद है रिडक्शन इन टैक्स रेट्स एंड अननेसरी कंट्रोल ऑफ ओवर द इकोनॉमिक्स, ठीक है, और जो टैक्स रेट है उसको कम किया गया है लिबरलाइजेशन में। एंड उसके बाद सिंप्लीफाइंग द प्रोड्यूसर्स फॉर इम्पोर्ट एंड एक्सपोर्ट गुड, ओके, और आसान कर दिया गया इम्पोर्ट एंड एक्सपोर्ट को। अट्रैक्टिंग फॉरेन कैपिटल ऑन द कंट्री, और जो फॉरेन कंट्री है उसके फॉरेन कैपिटल को अट्रैक्टिंग किया गया। ओके, इम्पैक्ट ऑफ liberalization on business and industry in India. Okay, remove the barriers of international investing, ठीक है, investing and emerging market countries in often restricted by tax law, foreign investment restriction, legal issues and accounting regulation. Liberalization policy result is relaxation of the barriers and some control over the direction of the economic to the private sector. It result is प्राइवेटाइजेशन टू सर्टेन कंपनी। ओके, तो ये आपके ऐसे इम्पैक्ट पड़े हैं। एंड उसके आगे इम्पैक्ट उसके देखिए एक आपका स्टॉक मार्केट परफॉर्मेंस पे पड़ा है, ठीक है। तो इसमें क्या है, लिबरलाइजेशन रिजल्टेड इन इंक्रीज स्टॉक मार्केट वैल्यू, ठीक है, लिबरलाइजेशन करने से उस हमारे स्टॉक मार्केट में मतलब उछाल आया, इंक्रीज हुआ। ए रिजल्ट इन इनफ्लो ऑफ कैपिटल, देखिए, एंड सच फ्लो ऑफ द कैपिटल एंड अनअवेलेबल टू इन्वेस्टर पीरियड्स टू लिबरलाइजेशन। ओके, रिडक्शन ऑफ पॉलिटिकल रिस्क, ठीक है, और लिबरलाइजेशन से क्या हुआ कि जो पॉलिटिकल रिस्क हैं वो कम कर दिया गया, ठीक है, देखिए। एंड लिबरलाइजेशन क्रिएट द इन्वायरमेंट इन द कंट्री विच वाज एबल टू अट्रैक्ट डोमेस्टिक एज वेल फॉरेन इन्वेस्टर, ठीक है। जब पॉलिटिकल रिस्क को कम कर दिया गया तो उससे क्या है कि जो फॉरेन इन्वेस्टर हैं और जो डोमेस्टिक इन्वेस्टर हैं वो दोनों इन्वेस्ट करने लगे। एंड लिबरलाइजेशन अलाउ इन्वेस्टर टू ऑपरेट विथ मोर कॉन्फिडेंस विद इन कंट्री। ओके, एंड उसके बाद है डाइवर्सिफिकेशन ऑफ इन्वेस्टर, ठीक है। लिबरलाइजेशन अलाउ इन्वेस्टर टू इन्वेस्ट एंड पोर्टेशन ऑफ देयर पोर्टफोलियो इनटू डाइवर्सिफाई क्लास। It allows the country to become more integrated with the rest of the world. Okay, and हम बढ़ते हैं प्राइवेटाइजेशन, ठीक है। प्राइवेटाइजेशन क्या है कि दिस इकोनॉमिक रिफॉर्म एम टू इंक्रीज द रोल ऑफ प्राइवेट सेक्टर, ठीक है। और प्राइवेटाइजेशन करने का मतलब ये हुआ कि ये इसका मेन उद्देश्य था कि प्राइवेट सेक्टर को बढ़ावा देना, ठीक है, इन द इकोनॉमिक द हेयर बाई रिड्यूसिंग द रोल ऑफ पब्लिक सेक्टर, ठीक है, पब्लिक सेक्टर का जो रोल है उसको कम करना। ये 1991 में हुआ था। द इंडियन गवर्नमेंट अडॉप्टेड द पॉलिसी प्लान्ड डिसइन्वेस्टमेंट ऑफ पब्लिक सेक्टर, ठीक है। इसमें क्या है, अंडर द पॉलिसी सिक एंड लॉस मेकिंग इंटरप्राइजेज वेयर हैंडेड ओवर BIFR, मतलब बोर्ड ऑफ इंडस्ट्रियल एंड फाइनेंशियल रिकंस्ट्रक्शन। ओके, एंड उसके आगे देखेंगे ग्लोबलाइजेशन, ठीक है। तो ग्लोबलाइजेशन क्या है कि आपका ग्लोबलाइजेशन मीन्स इंटीग्रेटिंग and the economic of the country with the economics of other countries to facilitate free flow of trade, capital, people and technology across the border. It lead to emergencies of global economic. These economic reform aim to eliminate geographical and political barrier trade among various states, various nation of global. ओके, तो ग्लोबलाइजेशन क्या है कि इसका मेन एम था कि जो भी पॉलिटिकल बैरियर हैं और जो जियोग्राफिकल जो बैरियर्स है उसको रिमूव करना, ठीक है। इम्पैक्ट क्या हुआ पॉलिसी आने के बाद, तो इंक्रीजिंग कंपटीशन, मार्केट में कंपटीशन बहुत ज़्यादा हो गया ड्यू द इंट्री ऑफ द फॉरेन कंपनीज पोस्ट 1991 कंपटीशन ऑफ इंडियन कंपनीज इंक्रीज। ओके, कंपनी में सॉरी इंडस्ट्री में कंपनीज का जो भी कंपटीशन बढ़ गया था उसमें उस 1991 में। मोर डिमांडिंग कस्टमर्स, ठीक है, कस्टमर्स पोस्ट 1991 हैव बिकम मोर पावरफुल विथ मोर ऑप्शन, दे नो हैव वाइडर चॉइस ऑफ गुड्स एंड सर्विसेज, ठीक है। बहुत ज़्यादा जब कस्टमर की डिमांड हुई तो उस समय किया गया ग्लोबलाइजेशन और देखा गया। एंड उसके बाद है रैपिडली चेंजिंग द टेक्नोलॉजिक इन्वायरमेंट, ठीक है, उसमें फिर क्या किया गया, चेंजिंग किया गया टेक्नोलॉजिक इन्वायरमेंट में। देयर हैज़ बीन रैपिड एडवांटेजमेंट in technology and companies have tried to cope off with a advancement. Okay, and उसके बाद क्या किया गया है, necessity of change,
तो पोस्ट 1991 में लॉट हैज़ हैपेंड एंड चेंज इन वेरियस डिपार्टमेंट बिजनेस एंड बिकम अ इम्परेटिव, ठीक है। नीड फॉर डेवलपमेंट ह्यूमन रिसोर्स, तो उस समय क्या हुआ जब ग्लोबलाइजेशन हुआ तो ह्यूमन रिसोर्स का जो डेवलपमेंट हुआ है वो कैसे हुआ है कि रिक्वायरमेंट टू हाईली एंड कम्पटेंट एंड ट्रेन ह्यूमन रिसोर्स हैज़ इंक्रीज्ड इन ऑर्डर टू कोप अप विथ द स्टेप कंपटीशन गिवन मल्टीनेशनल कंपनीज। ओके, ये इम्पैक्ट हुआ है ग्लोबलाइजेशन आने के पे। ओके, आई होप आप कितना समझ में आया होगा। तो प्लीज़ हमारे वीडियो को लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब जरूर करेगा, हम ऐसे वीडियो लाते रहेंगे। थैंक यू।